Hello class, today we will start with our next topic, Laplace transformation. So here in Laplace transformation, Laplace transformation, it is a very important tool to engineer and scientists to find the solution of what we here when we use this Laplace transform, that to find the initial value problem involving homogeneous and non-homogeneous differential equation. The method can be extended to solve the systems of linear equation, linear differential equation, partial differential equation and integral equation. Okay, it states some conditions. So we first see some formulas. First is gamma function. This notation, it is called as the gamma function, and value of this gamma function is equals to integral 0 to infinity e raised to minus x raised to minus 1 dx n is greater than 0. Second is gamma of n plus 1 is equals to gamma of here n into gamma n, which is equals to n factorial if n is an integer. Now third one is gamma of 1/2 is equals to under root of pi. Fourth one, here gamma of m into gamma of m plus 1 is equals to under root. I wrote all this formula, so this is easy to you. यहाँ पे देखो हर एक फार्मूला आपको दिया हुआ है कि गैमा ऑफ, यहाँ पे ये फार्मूला हमें इम्पोर्टेंट है कि गैमा ऑफ n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस x रेस टू n माइनस 1 dx. मतलब क्या है कि इस टाइप के जब इंटीग्रल आते हैं, इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, x क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज अ एनी फंक्शन. यहाँ पे x क्या रहेगा, आपका कोई भी फंक्शन ऑफ x रहेगा रेस टू n माइनस 1, इस फॉर्म में रहेगा. जो यहाँ पे है ना, वही आपका यहाँ पे पावर में आना चाहिए. So e raised to minus x raised to n minus 1 dx, n is greater than equals, n is strictly greater than 0, then value of this function gamma of n plus 1 is equals to n into gamma of n, which is equals to what, n factorial if n is the integer. Okay, now third one is gamma of 1/2. gamma of 1/2 की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ पाई. ओके, नेक्स्ट वन है कि गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2m माइनस 1 इंटू गैमा ऑफ 2m. ओके, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या रहती है, देखो ये आपका m एंड हियर अनदर फंक्शन इज व्हाट m प्लस 1/2. तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन ये आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2m माइनस 1 गैमा ऑफ 2m. देन यहाँ पे p अगर कोई भी नंबर रहेगा 0 to 1/2 के बीच में, तो यहाँ पे गैमा ऑफ p इंटू गैमा ऑफ 1 माइनस p इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन p पाई. नेक्स्ट है आपका एरर फंक्शन. एक्चुअली ये सारे फंक्शन अगर आपको याद रहेगा लास्ट ईयर में आपने सभी लिए हुए हैं. ये जस्ट एक रिवीजन है, क्योंकि ऑल दिस वैल्यू वी विल यूज इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एरर फंक्शन t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई 0 टू t e रेस टू माइनस u स्क्वायर du. ओके, नेक्स्ट इज एरर फंक्शन. यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब हम एरर फंक्शन लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आती है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज 2 अपॉन रूट पाई ईयर t टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस ईयर u स्क्वायर du इंटू c रहता है. एरर फंक्शन ऑफ t प्लस एरर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट t, इन दोनों की यहाँ पे देखो, ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है. मैं यहाँ पे ये देखो, इन दोनों की एडिशन, एरर फंक्शन t और उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उन दोनों की एडिशन हमेशा 1 ही रहती है. नेक्स्ट 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस 80 साइन bt, ये हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ फॉर्मूला है.
कि 0 to infinity e raised to at sin bt plus c is equals to b upon a square plus b, और e raised to minus at cos bt plus c is equals to a upon a square plus b. ओके, ये फॉर्मूला है इसका. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. ये आपका नेक्स्ट रूल है, डिफ्रेंशिएशन अंडर हियर इंटीग्रल साइन. उसके रूल से दैट जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं a to b f of x alpha dx and a and b are the constant, then we partially differentiate this function with respect to alpha. di upon d alpha is equals to integration a to b dabba alpha, here dabba by dabba alpha into bracket f of x alpha. इसे क्या करना है, partially differentiate करना है. These all are the what formulas which we used in this chapter. Now we start here move toward our next point, that is what is the Laplace transformation. here definition of Laplace transformation is, यहाँ पे आपको क्या रहता है ना, बहुत बार एग्जाम्पल्स में here define Laplace transform and they gives us one example to solve, so at least you have to know what is the definition of Laplace transform. Okay, if f of t is a function of t defined for all positive value of t, then the Laplace transform of f of t denoted by L of f of t is defined as okay, if f of t is a function of t defined for all positive value of t, then the Laplace transform of f of t denoted by Laplace of f of t is defined as Laplace of f of t is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, which provide that here that the integral exists and s is the parameter which may be real or complex. जो पैरामीटर रहता है ना, वो क्या रहता है आपका, रियल और कॉम्प्लेक्स रहता है s. here Laplace of f of t is a function of s. ये क्या रहेगा आपका, फंक्शन ऑफ s रहेगा और इट इज़ डिनोटेड बाय f of s. ये किससे डिनोट हुआ करते हैं, f of s से. मतलब आपका Laplace of f of t is nothing but the function of s which is equals to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. in short, while we are here calculating any integral, जब हम कोई भी इंटीग्रल इस काइंड का फाइंड करते हैं, मुझे सपोज ये लाप्लास भी नहीं पता, मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है 0 to infinity e raised to st into some function of t, तो ये सभी फंक्शन ऑफ t को शॉर्टकट में फाइंड आउट, दिस इंटीग्रल को शॉर्टकट में फाइंड आउट करना मतलब क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग द Laplace ऑफ f ऑफ t. ओके, और हमें ऑब्वियस है, आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, सम फंक्शन मिलता है विच इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ s रहता है. ये जो s रहता है ना, s इज़ नथिंग बट द पैरामीटर विच में भी रियल और कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. देयर इज़ अ 1-1 करस्पॉन्डेंस इन बिटवीन f ऑफ t एंड f ऑफ s. f of t is called object function. जो आपका f of t रहता है, it is called as the object function which is defined. ये किसके लिए डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड फॉर ईयर t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए. ओके, एंड f ऑफ s इज़ द रिजल्टेंट फंक्शन और इमेज फंक्शन. ये जो f ऑफ s रहता है, दिस इज़ नथिंग बट अ रिजल्टेंट फंक्शन रहता है, या फिर उसे इमेज फंक्शन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस कंडीशंस. अभी ये कब एग्जिस्ट होगा, देन Laplace transform of a function f of t exist if f of
टी इज कंटिन्यूस पीसवाइज ऑन एवरी फाइनाइट इंटीग्रल, किसी भी फाइनाइट इंटीग्रल पे एफ ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूस है। एंड एफ ऑफ टी सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू बी इंटू ई रेस टू ए टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। मॉड जो रहता है एफ ऑफ टी का वो हमेशा बी इंटू ई रेस टू ए टी से कम आना चाहिए, where a and b are the constants. So जो सेकंड कंडीशन इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी कहते हैं। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स, जिससे आपको क्या हो जाएगी, कंसेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। लेने से पहले हम यहाँ पे कुछ फंक्शन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट इज एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। सपोज लैप्लास ऑफ हम ले रहे हैं एफ ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपका क्या है, फंक्शन है लैप्लास का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी, मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 पुट करके इंटीग्रल सॉल्व करती हूँ, तो क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो कि t इज इक्वल्स टू, हम पहले यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी पे वो 0 हो जाएगा। एंड ई रेस टू, जब भी हम इसको इन 0 पुट करेंगे, ई रेस टू 0 अपॉन माइनस एस विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एस आ जाएगा। ई रेस टू 0 क्या है आपका, 1 आता है। तो यहाँ पे देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज़ नथिंग बट क्या आता है, एफ ऑफ एस। अभी देखो हमें ये फंक्शन ऑफ एस मिल गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस आ गया। लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस आ गया, ओके। इसी टाइप से हमें क्या करने रहते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है, ओके। नेक्स्ट इज सेकंड इक्वेशन हम लिखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है ई रेस टू 80 एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू 80। अगेन वी टेक हियर लैप्लास ऑफ हियर ई रेस टू 80 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह पे मैं पुट करती हूँ ई रेस टू 80 डी टी विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है, पावर की एडिशन हो जाएगी, माइनस एस टी प्लस 80 डी टी विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, हियर क्या आ जाएगा, माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं इसका विच इज़ इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लिया तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर लेते हैं, एस माइनस ए, राइट ना, डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, ओके। लिमिट ट्रांसफॉर्म 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगा, ई रेस टू टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। तो क्या आएगा ये, दिस इज़ नथिंग बट 1 अपॉन
1/s-a। तो यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ s हमें मिल गया। तो लैप्लास ऑफ e⁻⁸ इज इक्वल्स टू 1/s-a। ओके, आप सभी एग्जाम्पल्स को इस वे से कैलकुलेट कर सकते हो। विल राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, जिससे क्या हो जाएगा आपको ये इसी तरह के से हमें लाप्लास फाइंड करना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ। हम उसके फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं। व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हियर f of t and here is Laplace of f of t which is nothing but f of s। ओके, उसका लाप्लास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, first function is here 1 is equals to, सपोज f of t इज इक्वल्स टू 1 रहा, मतलब मुझे लैप्लास ऑफ अगर 1 कैलकुलेट करना है तो लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s आएगा। नाउ सेकंड इज लैप्लास ऑफ e⁻⁸। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको समझने के लिए, लैप्लास ऑफ e⁻⁸। तो क्या आएगा उसका आंसर, Laplace of e⁻⁸ is equals to 1/s-a। नेक्स्ट आएगा Laplace of sin 80। Laplace of sin 80 is equals to a/s² minus a²। नेक्स्ट Laplace of cos 80, ये क्या आएगा आपका s/s² माइनस a²। उसके यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे s इज ग्रेटर देन a रहेगा, 0 रहेगा, s² प्लस है, सॉरी प्लस, यहाँ पे भी आपका s क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू a/s² माइनस a²। कंडीशन है s क्या रहेगा आपका मॉड a से ग्रेटर रहेगा। नेक्स्ट इज लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, ये क्या रहता है s/s² माइनस a²। s इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ s। नेक्स्ट है आपका Laplace ऑफ हियर t⁻n रहता है आपका gamma ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s⁻n+1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n⁻⁴ डिवाइडेड बाय s⁻n+1। ओके, दिस ऑल आर द फॉर्मूला फॉर लाप्लास फंक्शन। लाप्लास फंक्शन के ये सभी क्या है, फॉर्मूलाज हैं।
ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अगर लाप्लास के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं तो ये सभी फॉर्मूला एटलीस्ट आपके बाय हार्ट होने चाहिए देन एंड देन यू कैन solve the example. Laplace of 1 is equals to 1 upon s. Laplace of e raised to at is equal to 1 upon s minus a. Laplace of sin at is equals to a upon s square plus a square. Laplace of cos at is equals to s upon s square plus a square. Laplace of sin hyperbolic at is equal to a upon s square minus a square. Laplace of cos hyperbolic at is equal to s upon here s square minus a square. And Laplace of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. These all are the formula which we used in here Laplace equation. Now we will take some examples so you will get your idea how to solve the examples. Okay, example is given to us. Find Laplace transform of example. Find Laplace transform of